چہرے کے پیچھے شہزادی ایک 28 سالہ گھریلو خاتون، شادی کو 3 سال ہوئے۔ عادل شہزادی کا شوہر، 32 سالہ پراپرٹی ڈیلر، ظاہر میں نرم گفتار۔ فائزہ آپا شہزادی کی ساس، 60 سالہ خاتون، طبیعت صاحبہ، ایک پراثر خاتون جو محلے میں نئی آئی ہیں۔ کپتان ریحان فائزہ آپا کا بھانجا، پولیس افسر۔ سردیوں کی ایک دھندلی صبح تھی۔ شہزادی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اس کا شوہر عادل اپنی نئی کار میں بیٹھنے جا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ 3 سال کی شادی کے بعد بھی عادل وہی محبت بھرا رویہ رکھتا تھا۔ پیاری میں آج دفتر سے دیر سے آؤں گا، کسی کلائنٹ سے ملاقات ہے۔ عادل نے دروازے سے آواز دی۔ ٹھیک ہے، پر کھانا ضرور کھانا، شہزادی نے جواب دیا۔ کار کے دور ہوتے ہی شہزادی نے گھر کے کام شروع کر دیے۔ فائزہ آپا، اس کی ساس، اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ ان کی آواز آ رہی تھی، یا اللہ اس گھر کی برائی سے بچا، ہمارے رازوں کو چھپا رکھ۔ شہزادی نے کندھا اڑے۔ فائزہ آپا اکثر ایسی دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ ابتدا میں شہزادی نے سمجھا کہ بزرگوں کی عادت ہے، مگر اب وہ سوچنے لگی کہ کون سے راز ہیں جو چھپانے پڑ رہے ہیں۔ دوپہر کو ڈاکیا آیا۔ اس نے ایک پارسل دیا جس پر لکھا تھا، مس شہزادی، گھر نمبر 45 بہلوپور روڈ۔ شہزادی حیران ہوئی۔ اس نے کسی سے کوئی چیز آرڈر نہیں کی تھی۔ پارسل کھولا تو اندر ایک خوبصورت لال ریشم کا سکارف تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر لکھا تھا، تمہاری خوبصورتی اس سرخ رنگ میں 4 چاند لگائے گی، تمہارا چاہنے والا۔ شہزادی کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ خط عادل کا نہیں لکھا رہا تھا۔ شہزادی نے فوری طور پر عادل کو فون کیا۔ ہلو پیاری، کیا بات ہے؟ عادل، مجھے ایک عجیب پارسل ملا ہے، لال سکارف اور ایک کارڈ، شاید تمہاری دوستوں میں سے کسی نے بھیجا ہو۔ عادل کی آواز میں معمول کی نرمی تھی، مگر شہزادی کو لگا کہ تھوڑی سی کپکپی تھی۔ مگر اس پر لکھا ہے، تمہارا چاہنے والا۔ عادل ہنس پڑا۔ ارے واہ، شاید کوئی تمہارا مداح ہے۔ فکر مت کرو، میں واپس آ کر دیکھوں گا۔ فون بند ہوا۔ شہزادی نے سکارف کو غور سے دیکھا۔ یہ اعلیٰ معیار کا ریشم تھا، جسے کسی مہنگے پورٹ سے خریدا گیا ہو۔ اس کی گنجائش نہیں تھی کہ اس کی کوئی دوست اس طرح کا مہنگا تحفہ بھیج سکتی۔ رات کو عادل واپس آیا۔ شہزادی نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ عادل نے سکارف کو ہاتھ میں لے کر دیکھا، پھر اچانک اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ سکارف مجھے لگتا ہے میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے، عادل نے کہا۔ کیا، کہاں؟ عادل نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ شاید غلطی سے میری کلائنٹ کی بیوی کے پاس اسی طرح کا سکارف تھا۔ اتفاق ہوگا۔ مگر اس رات شہزادی نے نوٹ کیا کہ عادل بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوس دور تھی۔ اگلے ہفتے شہزادی نے ایک اور عجیب واقعہ دیکھا۔ وہ مارکیٹ سے گھر واپس آ رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ فائزہ آپا گھر کے سامنے والے پارک میں ایک خاتون سے بات کر رہی ہیں۔ اس خاتون نے سر سے پاؤں تک سایہ برقع پہن رکھا تھا۔ فائزہ آپا کا چہرہ خوف زدہ لگ رہا تھا۔ انہوں نے کچھ کاغذات اس خاتون کو دیے اور جلدی سے گھر کی طرف چل پڑی۔ شہزادی نے خود کو درخت کے پیچھے چھپا لیا۔ برقع پوش خاتون نے برقعے کا کچھ حصہ ہٹا کر کاغذات دیکھے۔ اس لمحے شہزادی نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ وہ تقریباً 40 سال کی تھی، گورے رنگ کی، اور اس کی باتیں آنکھ کے پاس ایک چھوٹا ساتل تھا۔ اس نے فوری طور پر برقع واپس ڈال لیا اور جلدی سے چلی گئی۔ شہزادی گھر پہنچی تو فائزہ آپا اپنے کمرے میں بند تھی۔ شہزادی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپا، چائے لاؤں؟ نہیں بیٹا، مجھے آرام کرنے دو۔ فائزہ آپا کی آواز کانپ رہی تھی۔ رات کے کھانے پر شہزادی نے عادل سے پوچھا، کیا آپا کی کوئی پرانی دوست ہمارے محلے میں آئی ہیں؟
आदिल का कांटा चेहरे से हाथ पर लग गया। क्यों? तुमने क्या देखा? मैंने आपा को पार्क में एक बुर्कापोश खातून से बात करते देखा। आदिल ने गहरी सांस ली। तुम्हारी आपा, उन्हें कुछ दिमागी मसला है। वो कभी कभी लोगों को गलत शिनाख्त देती है, इसलिए जो कुछ भी वो कहे इन पर यकीन मत करो। शहजादी ने हैरान होकर देखा। दिमागी मसला? मगर वो तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये बीमारी चुपती रहती है। मैंने इनका इलाज करवाया है, मगर वो दवा नहीं लेती। आदिल ने शहजादी का हाथ थाम लिया। मेरे लिए इनकी खातिर तुम पर ये राज जाहिर ना करता, मगर मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें कुछ गलत ना बना दे। इस रात शहजादी सो ना सकी। आदिल की बातों में तजाद थी। घर अगर फायदा आपा बीमार हैं तो वो उन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाता? और वो बुर्कापोश औरत कौन थी? एक हफ्ते बाद आदिल शहर से बाहर गए एक बिजनेस मीटिंग के लिए गया। शहजादी ने कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब बो महसूस की। ये पुरानी किताबों और कॉफर की मखलूत बो थी। कमरे के कोने में एक बड़ा सा पुराना ट्रंक था। शहजादी ने ट्रंक को खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ किताबें और एक छोटा सा लकीरी का डब्बा खोला तो इसमें पुरानी तस्वीरें थी। एक तस्वीर में नौजवान फायदा आपा थी, एक खूबसूरत बच्ची को गोद में लिए हुए। बच्ची की उम्र तकरीबन 3 साल थी। दूसरी तस्वीर में फायदा आपा एक मर्द के साथ थी, जो आदिल जैसा दिखाई दे रहा था, मगर यकीन से कहना मुश्किल था। शहजादी ने तस्वीर के पीछे लिखा था और देखा, मेरी प्यारी ज़ैनब और इसके बाबा। 95। ज़ैनब कौन थी? ज़ैनब, आदिल ने कभी किसी बहन का जिक्र नहीं किया था। शहजादी ने मज़ीद तस्वीरें देखी। एक तस्वीर में वही बच्ची बड़ी होकर तकरीबन 20 साल की लग रही थी। इसकी शक्ल में वही तल था जो इस बुर्कापोश खातून के चेहरे पर देखा था। शहजादी का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने जल्दी से तस्वीरें वापस डब्बों में रखी और ट्रंक बंद कर दिया। वो समझ गई थी कि इसने किसी गहरे राज की कंडी कर ली है। फायदा आपा के वापस आते ही शहजादी ने बराए रास्त सवाल किया, आपा ज़ैनब कौन है? फायदा आपा का चेहरा सफेद पड़ गया। इनका हाथ कांपने लगा। तुम्हें कैसे पता? मैंने पुराने एल्बम में तस्वीर देखी। वो आपकी बेटी थी? फायदा आपा आंसुओं में डूब गई। हाँ, मेरी प्यारी बेटी। वो मर गई। कैसे? फायदा आपा ने गहरी सांस ली। एक हादसा, बहुत पुरानी बात है, मगर इनकी आंखें कुछ और कह रही थी। वो खौफ से इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई सुन रहा हो। आदिल ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? आदिल, इसे इस बारे में बात करना पसंद नहीं। तुम भी बात मत करो, वरना। फायदा आपा रुक गई। वरना क्या? कुछ नहीं, बस मेरी खातिर इस मामले को भूल जाओ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अगले दिन शहजादी ने फैसला किया कि वो मोहल्ले में नई आने वाले इस खातून से मिलेगी जिसे इसने पार्क में देखा था। मोहल्ले की एक बूढ़ी खातून ने पता चला कि वो औरत गली नंबर 4 के घर नंबर 12 में रहती है। शहजादी ने हिम्मत जमा कर और इस घर के सामने पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद वही बुर्कापोश खातून दरवाजे पर आई। जी, इसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। मैं शहजादी हूँ, आपके पड़ोस से। मैंने सोचा नया पड़ोसी है, मिल लेती हूँ। खातून ने थोड़ी देर सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। आए। घर के अंदर सादा सा फर्नीचर था। शहजादी ने गौर से इसका चेहरा देखा। हाँ, वही ताल था। मैं साहिबा हूँ। आप यहाँ कब से हैं? तकरीबन 1 महीना हुआ। साहिबा ने चाय बनाने के लिए उठते हुए कहा, आपने फायजा आपा से मुलाकात की थी ना? मैंने आपको पार्क में देखा था। साहिबा का हाथ चाय का कप गिराने ही वाला था। इसने खुद को संभाला। जी हाँ, वो मेरी पुरानी जान पहचान है। आप इनकी बेटी ज़ैनब को जानते हैं? ये नाम सुनते ही साहिबा का चेहरा बदल गया। इसकी आंखें चूरी हो गई। आपको ये नाम कैसे पता? मैंने पुराने एल्बम में तस्वीर देखी। साहिबा ने गहरी सांस ली।
मिस शहजादी, आप कौन हैं? मैं फायजा, आपा की बहू हूँ, आदिल की बीवी। साहिबा अचानक खड़ी हो गई। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए अभी। क्यों, क्या बात है? बराए मेहरबानी, आपकी अपनी भलाई के लिए। साहिबा ने दरवाजा खोल दिया। और बराए करम किसी से मेरी बातों का जिक्र मत करें, खास तौर पर आपके शोहर से। शहजादी मजबूरन वापस आ गई, मगर इसका जहन और भी उलझन में पड़ गया। साहिबा का खौफ वाजिया था। वो आदिल का नाम सुनकर क्यों डर गई? इस शाम उसने फैसला किया कि वो एंट्रेंस में सट जाएगी। इसने ज़ैनब बहलू और हादसा 1998 लिख कर सर्च किया। ज़ैनब उम्र 22 साल, घर में मुर्दा पाई गई। फैमिली के मुताबिक वो डिप्रेशन का शिकार थी और इसने जहर खा लिया था। पुलिस ने कोई फौजदारी मकदमा दर्ज नहीं किया। तस्वीर धुंधली थी, मगर शहजादी ने पहचान लिया, वो वही लड़की थी जिसकी तस्वीर इसने एल्बम में देखी थी। शहजादी ने मजीद सर्च किया। एक और आर्टिकल मिला जो 3 माह बाद शाया हुआ था। खुदकशी केस में नए सरे से तहकीक का मुतालबा। इसमें लिखा था, ज़ैनब के चचाजाद भाई कैप्टन रेहान। पुलिस ने दावा किया है कि इसकी मौत खुदकुशी नहीं थी। इनका कहना है कि तकदीर दबाव में की गई। ताहम आला अफसर ने इस केस को बंद कर दिया। रेहान का क्या ये वही रेहान है जो कभी कभार इसके घर आया करता था? फैजा आपा का भांजा। जब आदिल वापिस आया तो रेहान फौरन चला गया था। शहजादी ने रेहान का फ़ोन नंबर ढूंढने की कोशिश की। फ़ायज़ा आपा के फ़ोन में शायद हो। जब फ़ायज़ा आपा नंबर पढ़ रही थी, शहजादी ने इनका फ़ोन देखा। रेहान का नंबर मिला। शहजादी ने घर के फ़ोन से नंबर डायल किया। हेलो, एक मर्दाना आवाज़ आई। क्या मैं कप्तान रेहान से बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं रेहान बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? मैं शहजादी हूँ, फ़ायज़ा आपा की बहू। लम्हा भर की खामोशी थी। फिर रेहान ने कहा, मुझे आपकी बात करनी है, मगर फ़ोन पर नहीं, मुलाकात करें। क्या? कल दोपहर 2 बजे शहर की लाइब्रेरी के सामने वाली कॉफ़ी शॉप में अकेली आएं, किसी को बताना नहीं। शहजादी ने आदिल से कहा कि इसे अपनी दोस्त से मिलना है। आदिल ने मामूल की तरह इजाज़त दे दी। कॉफ़ी शॉप में रेहान एक कोने में बैठा था। वो 35 साल के करीब था, सीधे सादे कपड़ों में। इसके चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। आपने मुझे क्यों बुलाया? शहजादी ने पूछा। पहले आप बताइए, आपको ज़ैनब के बारे में कैसे पता चला? शहजादी ने सारा वाक़या बताया। तोहफा, बुर्का-पोश औरत, पुराना एल्बम, न्यूज़ एजेंट। रेहान ने गहरी सांस ली। मिस शहजादी, आप खतरे में हैं। क्यों, क्या खतरा? आदिल ने आपसे शादी क्यों की? सवाल सुनकर शहजादी हैरान रह गई। क्या मतलब? हम मोहब्बत करते थे? नहीं, आदिल मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ अपना मफाद देखता है। रेहान ने अपना फ़ोन खोला, कुछ तस्वीरें दिखाई। ये देखें, तस्वीरें आदिल की थी, जिनमें वो मुख्तलिफ खातून के साथ था। एक तस्वीर में वो साहिबा के साथ था। ये साहिबा कौन है? ये ज़ैनब की बेहतरीन दोस्त थी। जिस रात ज़ैनब मरी, साहिबा वहाँ थी। रेहान ने कहा, इसने मुझे बताया कि आदिल और ज़ैनब की लड़ाई हुई थी। ज़ैनब ने आदिल को तलाक देने की धमकी दी थी। तलाक? मगर आदिल तो मुझसे पहले कभी शादीशुदा नहीं था। रेहान ने दर्द भरी नज़रों से देखा। आप गलत हैं। आदिल और ज़ैनब शादीशुदा थे। 5 साल तक। शहजादी का सर चढ़ने लगा। ये मुमकिन नहीं। ज़ैनब मेरी चचाजाद बहन थी। आदिल इसका शौहर था। रेहान ने कागजात की सारी फाइल निकाली। ये देखें, शादी का सर्टिफिकेट। कागजात में आदिल और ज़ैनब के नाम थे। आदिल ने इसे मारा था। रेहान ने बताया कि जिस रात ज़ैनब मरी, साहिबा वहीं थी। वो चुपके से कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि आदिल और ज़ैनब झगड़ रहे हैं। ज़ैनब ने कहा था कि वो आदिल के बेवफाई के बारे में सबको बताएगी। आदिल ने गुस्से में ज़ैनब का गला दबा दिया। रेहान की आवाज़ कांप रही थी। साहिबा ने चीख मारी तो आदिल ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो इसे भी मार दूंगा। फिर साहिबा ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आदिल के वालिद बड़े
बाअसर आदमी थे। उन्होंने मकदमा दबा दिया। साहिबा को डरा गया था। फायजा आपा को भी धमकी दी गई कि अगर कुछ बोला तो आदिल इसे भी मार देगा। रेहान ने बताया कि इसने खुद तकरीर करने की कोशिश की मगर इसे भी धमकियां मिली। इसे पौष्टिक दूर कर दी गई। आपसे शादी आदिल ने इसलिए क्योंकि आपकी शक जैनब से मिलती थी। वो जैनब का था। शायद साहिबा ने भेजा हो ताकि आपको खबरदार करे। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबूत चाहिए, रेहान ने कहा। आदिल का कंप्यूटर, फोन, कागजात, कुछ ऐसा जो इसके जुर्म को सबूत करे। मगर एहतियात से, अगर इसे शक हुआ तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शहजादी घर वापस आई तो आदिल ने पूछा, तुम्हारी दोस्त से मुलाकात कैसे रही? तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं। कुछ नहीं, उलझी हो गई थी। शहजादी ने झूठ बोला। रात को जब आदिल सो गया, शहजादी ने इसके दफ्तर के कमरे में जाने का फैसला किया। आदिल अपना कंप्यूटर और अहम कागजात वहीं रखता था। शहजादी ने चाबियां निकाली जो आदिल ने अहम कामों के लिए दी थी। एहतियाती से दफ्तर के दरवाजे को खोला। कंप्यूटर पासवर्ड से महफूज था। शहजादी ने दरवाजों को चेक किया। एक दर्जा में पुरानी डायरियां थी। एक डायरी पर लिखा था 1993 1998। शहजादी डायरी खोली। 15 मार्च 1998। जैनब ने मुझे धमकी दी है कि वो मेरे बेवफाई के बारे में सबको बता देगी। 22 मार्च 1998। आज रात शहजादी का हाथ कांपने लगा। इसने डायरी छुपी जेब में रख ली। मजीद कागजात देखे। नीचे एक फाइल थी जिस पर लिखा था 19। फाइल में जैनब की 19 प्लस ली थी। फायदा उठने वाला आदिल था। आदिल दरवाजे पर खड़ा था। इसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। मैं कुछ ढूंढ रही थी, शहजादी ने हिचकिचाते हुए कहा। आदिल ने नजर दौड़ाई। इसने देख लिया कि दराज खुली है और डायरी गायब है। तुम्हारे पास मेरी डायरी है? आदिल की आवाज़ खतरनाक हद तक पुरसुकून थी। नहीं, झूठ मत बोलो। शहजादी आदिल करीब आया। तुमने कितना जान लिया है? शहजादी ने पीछे हटने की कोशिश की। सब जानती हूँ जैनब के बारे में। तुमने इसे मारा था? आदिल का चेहरा बिगड़ गया। वो खुद मरी थी। इसने जहर खा लिया था। झूठ, मैंने डायरी पढ़ी है। तुमने लिखा है। आज रात आदिल ने अचानक शहजादी का हाथ पकड़ लिया। तुमने बड़ी गलती की है। तुम अब मेरे साथ रहोगी और कभी इस बारे में बात नहीं करोगी, वरना दरवाजे पर दस्तक हुई। आदिल भाई, फायदा आपा की तबीयत बहुत खराब है। ये घर का नौकर था। आदिल ने शहजादी को छोड़ा। ये बात यही खत्म होती है। सब भी फायदा आपा का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था। 15 मिनट में पहुंचता हूँ। CCU के पास रहना। शहजादी CCU के बाहर बैठी थी कि आदिल आया। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर चलो। नहीं, मुझे यहीं रहना है। आदिल करीब आया, आहिस्ता से बोला, डायरी वापस दो। नहीं दूंगी। तुम्हारी जान की परवाह नहीं करूँगा। आदिल की आंखों में खौफनाक इरादा था। कोई मजाक नहीं, हमारे पास सबूत है। रेहान ने शहजादी की तरफ देखा। डायरी है? शहजादी ने डायरी रेहान को दी। आदिल ने हंसने की नाकाम कोशिश की। ये डायरी मेरी नहीं है, ये जली है। हम ग्राफोलॉजी टेस्ट करेंगे, रेहान ने कहा। और साहिबा गवाही दे रही है। आदिल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इसे हथकड़ी लगा दी गई। अदालत के अंदर शहजादी गवाही दे रही थी। साहिबा ने भी सच बोला। डायरी के अलावा नौशरी साइड भी सबूत थे। फायजा आपा ने भी हलफनामा दिया कि आदिल ने जैनब को मारा था और उन्हें धमकी दी थी। आदिल के वकील ने भरपूर जद्दोजहद की मगर सबूत मजबूत थे। आखिरी फैसला सुना दिया गया। आदिल हसीन को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सजा सुनते ही आदिल ने शहजादी की तरफ देखा। इसकी आंखों में नदामत थी, ना
पछतावा, सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। कुछ महीने बाद शहजादी ने फायजा आपा के साथ एक छोटा सा घर ले लिया। रेहान इनसे राब्ते में रहता था। रेहान ने शहजादी से कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, तुम्हारी वजह से एक मजबूर का सजा मिल गई। इखलाकी सबक। खामोशी कभी कभी सच्चाई के साथ गद्दारी होती है। हमें हमेशा हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे रास्ता कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। रास्ते जहरी दिखाते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।